Hello students, I hope you have understood the previous video where I have discussed about the equations of motion. That is three equations of motion. Those are v equals to u plus at. Then second equation of motion is s equals to ut plus half at square. Third equation of motion is 2as equals to v square minus u square. And in that video, I have explained how to derive all those three equations of motion. So today I am here with a new topic, that is the graphical representation of motion. So here today in this video where I am going to discuss about different types of graph which is used to calculate the velocity, acceleration, than your distance travel, or we can say speed. So basically there are two types of graphs used to represent the motion, and those are distance time graph and speed time graph, or we can say as a velocity time graph, right? So in distance time graph, what we have seen that I have drawn two graphs, right? So in this first graph, we can say we are able to see that x-axis represents the time and y-axis represents the distance, and here this straight line shows that it is in a uniform speed. So in this graph, distance time graph is always used to find the speed, because we know the formula for the speed is distance travel upon time taken. So that's why whenever we are going to use the distance time graph, so there we are going to use find the speed, or we can say uniform speed. So in the second graph, you can see that I have shaded one portion, right? So why I have shaded this portion will come to know by solving this graph. So अगर हम लोग इस ग्राफ में ले लेते हैं, सपोज स्पीड फाइंड करना है, ठीक है. सो ऑलरेडी मैंने इस ग्राफ में शो किया है कि दिस स्ट्रेट लाइन शो इंडिकेट्स एज यूनिफॉर्म स्पीड. सो इसलिए क्या है कि जो यहाँ पे ओ ए है, ओ ए को हम स्पीड इंडिकेट कर देते हैं, सॉरी डिस्टेंस इंडिकेट कर देते हैं, एंड जो स्पीड इंडिकेट कर देते हैं. तो अगर मुझे स्पीड फाइंड करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस graph. So from the previous videos, we know that the speed equals to distance travel upon time taken, and from figure, अगर हम लोग को फिगर से इंडिकेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है, सो वी इंडिकेट ए बी. वाई? बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दैट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट. सो एक्चुअल लेंथ कितना होगा, ये जो तुम्हारा जा रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये जो पूरा जो एरिया है, दिस पोर्शन इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सो दैट्स वाई हमने ए बी को क्या डिनोट किया है, डिस्टेंस ट्रेवल, एंड फॉर टाइम टेकन वी कैन सिंपली टेक एज ओ बी. तो हियर स्पीड इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी. एंड सो अब देखो इसमें जो ए बी अपॉन ओ बी है, ये ए बी अपॉन ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ए बी अपॉन ओ बी रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, दैट इज द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड. तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि what is the slope of this slope represent in a distance time graph, so this slope always represents a speed. तो इसीलिए मैंने इस फिगर में क्या लिखा हुआ है कि this slope, this straight path indicates a uniform speed. और uniform speed इसलिए mention किया है because it is moving with a equal interval at equal distance at equal time interval, right? तो इसीलिए we have used this term uniform speed because it is moving in a straight path. So that's why we can say that from the above conclusion, say that if the distance time graph of a body is a straight line, अगर हमारा distance time graph of a body straight line है, तो speed क्या indicate करेगा, speed will indicate as uniform. And if the distance time graph of a body is curved line से क्या show कर रहा है, although I have not drawn the figure, or we can simply draw this way, this is the graph, and अगर इसमें मैंने curve line draw किया जो कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने शो किया था, दिस कर्व लाइन इंडिकेट्स अ नॉन यूनिफॉर्म. तो अगर मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ
कर्व लाइन शो करता है तो देन द स्पीड विल बी नॉन यूनिफॉर्म. ओके, नाउ द स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो स्पीड टाइम ग्राफ में बच्चा क्या करते हैं कि हम लोग देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वी यूज़, एंड वो 3 केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं. एंड पहला वो तीनों केसेस क्या क्या हैं. फर्स्ट केस में क्या है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो स्पीड है इट वाज नॉट चेंजिंग, इट रिमेन्स एज कांस्टेंट. मतलब वो टाइम के साथ तुम्हारा स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. तो उसमें हमें क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा. एंड वाई आई हैव यूज दिस टर्म एक्सेलरेशन इन हियर, बिकॉज जब भी हम स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा क्या फाइंड होता है, एक्सेलरेशन फाइंड होता है. तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ या ज़्यादातर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लेते हैं, कहीं कहीं पे दोनों ही यूज़ करते हैं. तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा हम लोग एक्सेलरेशन से कनेक्ट करते हैं. जैसे हमने बात की कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं, सो यही इस केस में स्पीड टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. सो इसीलिए हमने कहा कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब जब तुम्हारा स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम चल रहा है, सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा. क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो है माइनस इनिशियल, डिफरेंस इन द वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो अगर दोनों में ही तुम्हारा स्पीड सेम है, सपोज अगर मेरा स्पीड 20 किलोमीटर जा रहा है एंड स्टार्टिंग भी मैंने 20 किलोमीटर में किया ही, एंडिंग भी मेरा 20 किलोमीटर ही है, तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विल बिकम 0. दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बिकम 0. देन सेकेंड केस में क्या है कि तुम्हारा जो स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट. यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है कि तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल कवर कर रहा है. सो तब तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बिकम यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म से क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इट विल शो अ स्ट्रेट पाथ. एंड देन इन द थर्ड केस व्हाट हैपन व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे. मतलब अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बट इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या होगा कि बॉडी विल शो अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मीन्स इट विल शो अ कर्व लाइन. ठीक है, जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं तो यूनिफॉर्म से ये हमें क्लियर हो जाता है कि दैट बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ. एंड वेयर एज इन नॉन यूनिफॉर्म, चाहे वो एक्सेलरेशन ले या चाहे वो स्पीड ले, तो दैट मीन्स अ बॉडी विल मूव इन अ कर्व लाइन. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज 3 केसेस वन बाय वन. सो फर्स्ट केस में क्या है कि दैट स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब हमने कहा कि जब स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट होता है तो मतलब वो क्या शो कर रहा है, यहाँ से हम फिगर से पता चल रहा है कि दैट वाई एक्सेस हमारा इंडिकेट कर रहा है स्पीड, एक्स एक्सेस इंडिकेट कर रहा है टाइम. और अगर स्पीड हमने वाई एक्सेस लिया तो मतलब तुम्हारा स्पीड क्या होगा, हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, तो मतलब इट विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, मतलब एक स्ट्रेट जाएगा बट इट विल बी अ पैरेलल टू दी टाइम. क्यों हमने इस तरीके से नहीं ड्रॉ किया स्लांटेड, बिकॉज तुम्हारा स्लांटेड ड्रॉ करने के लिए मीन्स तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. द स्पीड इज रिमेन कांस्टेंट, मतलब 20 है तो यहाँ पे भी 20 ही जा रहा है, पर हमारा टाइम चेंज हो रहा है. तो मतलब इसका मतलब यही है कि दैट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन तुम्हारा स्पीड ऑफ द बॉडी क्या इंडिकेट करेगा, द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंडिकेट एज कांस्टेंट. एंड इससे अगर मुझे इस पूरे का मुझे अगर डिस्टेंस ट्रेवल मतलब बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो फाइंड करना है, तो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू फॉर द डिस्टेंस. सो वी ऑल नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल विल बिकम स्पीड इनटू टाइम टेकन. एंड हियर आई एम गोइंग टू पुट द इक्वेशन 1. एंड अगर मुझे फाइंड करना है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एट पॉइंट सी मीन्स अगर मुझे यहाँ का फाइंड करना है कि एट पॉइंट सी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
तो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड, तो वी नो दैट स्पीड, हमें डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, टाइम टेकन चाहिए। तो एट स्पीड एट सी में हमारा स्पीड क्या होगा, सी में हमारा स्पीड विल बी बी सी, दिस इज द स्पीड फॉर द सी एट सी। तो सी भी हमारा क्या है, स्पीड एट सी। बट अगर हम इस ग्राफ से देखें, सी भी हमारा क्या है, सी बी इज इक्वल्स टू दिस पॉइंट ओ ए, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी बी विल सिंपली राइट ओ ए, क्योंकि यहाँ से इंडिकेट करने में, हमें वैल्यू यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे हम। तो इसीलिए वी हैव रिटन हियर सी स्पीड एट सी एज ओ ए, एंड इसको मैंने इक्वेशन 2 इंडिकेट कर दिया है। एंड व्हाट अबाउट द टाइम, टाइम एट सी विल बी ओ सी, सिंपली जो हमने इंडिकेट किया यहाँ पे वो ओ सी ही है। सो इसीलिए आई हैव रिटन टाइम एट सी एज ओ सी एंड इंडिकेट एज 3। सो इन दो इक्वेशन को, फॉर स्पीड एंड फॉर टाइम, इस इक्वेशंस को हम अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो विल गेट डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू ओ ए इंटू ओ सी। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो व्हाट इज बिकम ओ ए इंटू ओ सी, अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, इट इज मेकिंग अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अगर हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ देखो ओ सी क्या इंडिकेट कर रहा है, लेंथ, एंड ओ ए इंडिकेट कर रहा है ब्रेथ। तो दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज ओ ए बी सी। तो इससे हमें ये पता चला है कि दैट इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज का मतलब क्या है, कि जो इस पोर्शन के अंदर जो है एरिया, दैट बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स अस व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब ये जो एरिया है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है तो यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ लाइक एरो एंड देन विल इंडिकेट द डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो तुम्हारा रेक्टेंगल ही बनेगा, इट माइट बिकम समथिंग अदर। तो बट यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना तो डोंट गेट कंफ्यूज, वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो। बट उस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, फॉर ग्राफिकली अगर हमें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो देर इज सम अदर, बट अगर हमें न्यूमेरिकली फाइंड करना है तो वी कैन सिंपली यूज दोज इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो नाउ सो इन सेकेंड केस हमने क्या कहा था कि दैट स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट का मतलब है कि दैट इट वाज चेंजिंग विथ इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन 2 फिगर, दैट इज वन फिगर इट वाज इंडिकेटिंग दैट जो स्ट्रेट पाथ है वो तुम्हारा 0 से क्रॉस कर रहा है in the upward direction, and in second case you have seen you are able to see that कि जो मेरा स्लोप बन रहा है वो तुम्हारा ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। ऑल्दो बोथ आर मेकिंग अ ट्राइंगल, बट दोनों में डिफरेंस है, एक तुम्हारा ऊपर की तरफ बन रहा है, एक तुम्हारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों में बेटा डिफरेंस ये है कि जो तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है दिस शोज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब तुम्हारा क्या है, स्ट्रेट पाथ जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, इट इज़ ऑल्सो मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ बट इट इज़ मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हेयर वी कैन से दैट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। So I have already discussed about this term retardation, and retardation is always similar to the acceleration. But where is the difference in between the acceleration and retardation? That acceleration is always positive and retardation is always negative. So here from these two graphs we can indicate that in a speed time graph, if a body is moving in a straight line sloping upward direction, it shows that it is in a uniform acceleration. And if in a speed time graph a body straight line sloping downwards, अगर तुम्हारा downward की तरफ slope कर रहा है, that means it will indicates a uniform retardation, right? And there is one more graph जिसमें क्या तुमने देखा है कि I have not drawn a straight line from a 0, right, or O. So there is a reason why कभी कभी क्या है कि sometimes what happen, the speed time graph of a body मतलब initial जो speed होता है it is not 0, मतलब it was already moving with some speed and it ends at some speed. तो इसीलिए क्या किया है कि that I have not drawn it from the 0, I have taken some value over here
and then move a straight line. So this curve, this graph, we can say that it is a speed time graph of a body when it is not, when it is initial speed is not 0. तो अगर मुझे इस ग्राफ में मुझे डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है कि हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लेंगे, विल टेक दिस होल एरिया. एंड इसमें हमने क्या देखा है कि दिस फिगर रिप्रेजेंट एज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम बन रहा है ना, बिकॉज ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है, दैट टू साइड्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड टू अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल. तो इसमें देखो पैरेलल क्या बन रहे हैं, ओ बी एंड ए सी. ये दो लाइन्स है साइड्स है जो पैरेलल है एक दूसरे के, एंड ओ ए एंड बी सी इज नॉन पैरेलल. सो इसीलिए तो डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे फाइंड करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए सी बी. एंड हेयर वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, राइट. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि फिजिक्स इज इंटरलेटेड विद द मैथ्स. तो यहाँ पे हमें अगर फिजिक्स में हमें अच्छा स्कोर करना है तो दैट मीन्स वी आर मैथ शुड बी गुड. तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2. सो डिस्टेंस ट्रेवल पे क्या बन जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या क्या है, ओ बी एंड ए सी. सो इसलिए मैंने लिखा है ओ बी प्लस ए सी इनटू ओ ए. ओ ए मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट, बिकॉज दिस इज द हाइट. तो बाई 2. सो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से अगर मेरे पास ऐसा फिगर बनता है तो मैं इससे क्या फाइंड कर सकती हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. और एक चीज़, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद नहीं आता है तो देयर इज़ वन मोर मेथड हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं. इसमें क्या कर सकते हैं, इस पूरे फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक ये पार्ट डिवाइड हो गया और एक ये पार्ट. तो इसमें देखो, इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो क्या फिगर बन रहा है, वन इज़ रेक्टेंगल एंड वन इज़ ट्राइंगल. तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्लस कर दूँ तो मुझे इस पूरे एरिया का क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा. तो अगर सपोज तुम्हें कभी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद नहीं आता तो वी कैन सिंपली टेक इट, डिवाइड दिस फिगर इनटू 2 पार्ट. ठीक है. नाउ द लास्ट केस इज द स्पीड टाइम ग्राफ. means when speed changes at non-uniform rate means non-uniform acceleration. non-uniform rate का मतलब है कि unequal distance with equal interval of time, या फिर यहाँ पर distance यूज़ नहीं करेंगे, unequal speed with equal interval of time. ठीक है. तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, it will always make as a curved graph, means it will show represent as non-uniform acceleration. I hope students you have all understood these graphs, these two graphs, that is distance time graph and speed time graph, or we can say the velocity time graph, and what kind of graph we are going to take. means अगर suppose distance time graph ले रहे हो तो हमें क्या find करना है, और अगर speed time graph ले रहे हो तो हम लोग क्या find करेंगे. I hope you have all got this point, and in the next video I am going to discuss कि जैसे हमने कल इक्वेशंस ऑफ मोशंस किया था, वैसे ही हम लोग ग्राफिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. ठीक है. सो अगर कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन सिंपली पिन इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड mark your attendance by writing your name in the comment box. Okay. So till then, good day.